Firstly, thank you everyone for making it here. I'm the president of Roadtrack Club of Bombay Powai, and I'm just here to speak about the theme of the movie. Firstly, I'd like to thank Jay sir for introducing me to Vikrant sir. Vikrant sir has put forth a very beautiful concept, and it touched my heart. So I thought to take it up as a project, and it focuses on the psychological aspects of a child, and which people often tend to neglect. Um, Thank you so much for being here. It means a lot to me. Thank you. शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों कि आप आपका कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हो इस सोशल इशू को सपोर्ट करने के लिए। इसके लिए मैं विंग सुपरहिट की पूरी टीम की तरफ से रोटरी क्लब और लायंस क्लब का बहुत ही थैंकफुल रहूँगा कि जिन्होंने इस सोशल इशू को सपोर्ट किया। एंड ऑफ कोर्स द मीडिया, जिस मीडिया के बिना हमारा लोगों तक पहुँचना बहुत ही नामुमकिन था। इस मूवी में एक सॉन्ग हमने पिक्चराइज किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, और उसको लिखने वाले लिरिक्स और म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर यहाँ पे आए हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करके बताएंगे। प्लीज लाडो स्वागता एंड रंजीत कम हियर टू परफॉर्म दैट 3-minute song. Thank you. दोस्तों, हमारे देश में हर साल 6000 से भी ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, जिनकी उम्र 12 साल से लेकर 16 साल तक की होती है। ये बच्चे किन कारणों से सुसाइड करते हैं, क्या उसके रीजंस है और उनके सिम्टम्स क्या है? वो सुसाइड करने के पहले उन बच्चों के अंदर से क्या बदलाव आता है और उन बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है? इसके सॉल्यूशंस हमने इसके अंदर दिए हैं विद द हेल्प ऑफ साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स, जो इस फिल्म में देखने मिलेंगे। ये 2 घंटे की मूवी है जिसके अंदर से हम लोगों ने आधा घंटे का प्रीव्यू रखा है आप लोगों के लिए, और पूरी फिल्म देखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको थिएटर में जाकर प्लीज देखना और अपने दोस्तों को ये बात शेयर करना दोस्तों। थैंक यू सो मच। First, I have to say humanity. More than machinery, we need humanity. Like Mr. Vikrant Moore, like you all guys, जो ऐसे सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं। आज ज़माना ऐसी चीज़ों का है जहाँ पे फोकस इंसान का खींचा जाता है, करोड़ों खर्च किए जाते हैं इस फिल्म पे, और हम फिर दौड़े चले जाते हैं, कुछ पैसा खर्च करके उन फिल्मों को देखने के लिए, और जब सिनेमा हॉल में करते हैं तो हाँ दिमाग में कुछ अलग ही जा रहा होता है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सोसाइटी, सो वी हैव टू प्रमोट दिस टाइप ऑफ सब्जेक्ट। माय नेम इज रंजीत कुमार एंड आई एम वेरी लकी कि विक्रांत जी से मुलाकात हुई थी होटल में। मैं कई सालों से ना म्यूजिक फिल्मों में दे रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा एक गाना सुना और कहा कि चलो ये गाना इस फिल्म में रखते हैं। इट्स अ वेरी एनर्जेटिक एंड मोटिवेशनल सॉन्ग, यू कैन से। अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा
talk to other parents about it, other teachers about it, talk to people who can influence others, and see that they all go to the theatres and see the movie. When 10,000 people watch the movie in the theatre, then the movie becomes eligible for tax deduction. It is only then the movie will reach the masses. People in the villages, small towns, they don't have access to psychologists, counselors. People in huge cities like us, how many of us access them? Many people feel it's a shame to talk about these things. So everything is swept under the carpet. So this movie, it looks like when you see this, that it discusses only the pains, only the various thoughts that go on, the negative thoughts. But actually the movie talks about the causes of youth committing suicide. The various causes are traced. The symptoms that parents and teachers and friends can see and understand, okay, this is what is happening to the children, we can help them in the right time. And then the movie also shows the various solutions that are available, because the director and the producer have taken the help of a team of 150 psychologists, counselors, and discussed with them, and then arrived at this. So very, very viable solutions are presented that will be open for people, that can be executed by people in small villages and towns everywhere in India. Because the number of suicides that are reported, if there are 4,000, it can be safely assumed that it is in fact said that unreported are double in small villages and towns, because people feel it's a shame. So they don't say that so and so in our family has committed suicide. There are other और सच के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और किस प्रकार से ये रोटरी क्लब की बात करें तो किस प्रकार से सपोर्ट कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेके, कितना आप एक्साइटेड हैं? जी, मैं लायन जयेश जांगड़ा हूँ। मैं लायंस क्लब ऑफ घाटकोपर का प्रेसिडेंट हूँ। और जब मैं विक्रांत मोरे और कौशिक को मिला कि ऐसी मूवी बना रहे हैं जहाँ पे बच्चों के सब्जेक्ट के ऊपर हमने मूवी बनाएंगे, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कोई इवेंट में जहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही थी। तो मैं देख के उस मूवी को जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसको एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। एंड लायंस इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ स्प्रेडेड इन 106 कंट्रीज़, और हमारे बहुत सारे लायन मेंबर हैं जो ऐसे मूवीज़, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर काम भी करना चाहेंगे। तो मैंने अपने कोर ग्रुप में इसका डिस्कशन किया कि भाई ऐसे मूवी को हम सपोर्ट करते हैं। और कब जाके हमारे में ग्रुप के बाद में हमने उसको हमारे लायंस क्लब में प्रमोशंस करने के लिए किया। देन आज हमारा प्रयोग, हमारा उनसे सहयोग ऐसा रहेगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग जो बोलते हैं, या तो सोशल मीडिया में प्रमोशन करना है, तो लायंस विल बी प्रमोटिंग दिस ग्रुप अमॉन्ग्स लायंस ग्रुप्स। जैसे वो लायन मेंबर के पास जाएगा मैसेज, वो मैसेज ऑलरेडी इट हैज़ बीन सर्कुलेटेड इन अदर वे लाइक फेसबुक, व्हाट्सअप वगैरह वगैरह से, हमारे पर्सनल ग्रुप से भी गया हुआ है। और एक आज अभी जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमारे अलग अलग लायंस ग्रुप अलग अलग तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और हम लोग उनको इतना भी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा भी हो जाएगा कि शायद हम लोग 1 या 2 शो इस मूवी के पूरे परचेज या तो करेंगे, जिससे कि पूरा स्क्रीनिंग हम लायन मेंबर्स के लिए ही दिखा देंगे। तो कितना महत्वपूर्ण है ये समाज के लिए? क्यों ये समाज के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिप्रेशन को हमने दबा के रखा हुआ है। आज की तारीख में अगर मेरे घर में कोई केस है तो मैं उसको घर के बाहर निकले नहीं वैसी पूरी कोशिश करूँगा, हालांकि उसके ऊपर काम करूँ कि वो केस सॉल्व करे। हम हमारे जो भी रिलेटिव को ऐसी बीमारी हो जाती है उसको हम लोग दबा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन की बीमारी एज ए बीमारी के तौर पे हम उसको एक्सेप्ट करें, उसकी दवाइयाँ दें, उसको जो भी उनको काउंसलिंग देना है वो काउंसलिंग करें, जो काफ़ी हद तक इस मूवी में बताया गया है। बच्चों को लेके बताया हुआ है, बच्चों के बाद में आप इसको सब्जेक्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू यू एंड मी ऑल्सो। जब ये डिप्रेशन आता है तो हालत ख़राब हो जाती है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी इस मूवी के जरिए और इस प्रमोशन के जरिए या तो मेरे लायनिज़म के जरिए कि हम डिप्रेशन के सब्जेक्ट पे पूरा काम करें। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, लायंस क्लब इज़ ऑल्सो रनिंग आवर ओन डायग्नोस्टिक सेंटर। वहाँ पे हमने
कल इंटरव्यू लेके 2 साइकियाट्रिस्ट का इंटरव्यू लिया हुआ है और एक काउंसलर का भी इंटरव्यू लिया है। तो हम लोग उनके लिए हर वीक में 2 घंटे का टाइम स्लॉट स्पेशली अलॉट कर रहे हैं और एकदम कम रेट में काउंसलिंग अवेलेबल करा रहे हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म के बारे में? कट बोलिए। बहुत ही अच्छी सोच है। इस पिक्चर को देख के मुझे श्री आमिर खान की बनाई हुई पिक्चर याद आई, तारे ज़मीन पे। वो भी एक सब्जेक्ट बेस्ड पिक्चर थी और ये जो सब्जेक्ट आपने लिया है बहुत ही अहम है और आज की बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों जो पेरेंट्स होते हैं आजकल मोस्टली काम करने जाते हैं, ऑफिस जाते हैं और माँ बाप के पास टाइम नहीं होता है बच्चों के लिए, उनकी बात सुनने के लिए या उनकी समस्याएं जानने के लिए। हम रोटरी क्लब में काफ़ी बच्चों के साथ काम करते हैं और जो आपने दिखाया कि प्रोफेसर जो टीचर था वो बच्चे को उसका जो टच था वो सही नहीं था, तो हम ये बैड टच और गुड टच का सब्जेक्ट एक लिया हुआ है हमने, जो हम स्कूल में जाके और कॉलेजेस में जाके बच्चों को दिखाते हैं, उनको समझाते हैं कि उस टच को कैसे पहचानें, कौन सा टच सही है और कौन सा नहीं है। और जो टच उन्हें पसंद नहीं आता है उन्हें उसके बारे में अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से बात करनी चाहिए और मीडिया के सामने लेके आना चाहिए। तो ये जो डिप्रेशन है आजकल, टाइम की कमी और सोशल मीडिया को इतनी अवेयरनेस है बच्चों के कि वो जो फॉरेन की फिल्म देखते हैं, अभी आपने सुना होगा वो ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था जिसमें वो बच्चों को उस हद तक ले जाते हैं कि वो सुसाइड करें। तो ऐसी चीज़ें अगर हमारे बच्चे ना देखें, अगर हम पेरेंट्स उनको टाइम दें और दिखाएं कि वो अच्छी चीज़ें करें, स्पोर्ट्स में जाएं, पढ़ाई किताबें पढ़ें या उनकी जो चीज़ वो करना चाहते हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, जो भी हो, जो जहाँ पे उनकी तमन्ना हो जो करने के लिए वो हम उन्हें करने दें, तो आई थिंक ये समस्या से हम छूट सकते हैं। तो पढ़ाई खाली एजुकेशन को देखते हैं, भाई खेल या इस चीज़ को हम ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देते। वो भी इस फिल्म ने टच किया है कि चिल्ड्रन के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, हम पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है कि उसको इनकरेज करें। रिगार्डिंग द फिल्म, इट्स एन एक्सेलेंट फिल्म एंड आई विल रिकमेंड द डायरेक्टर डेफिनेटली a small clip of it should be sent to every school। जैसे आपने ये दिखाया, आप हर एक स्कूल में भेजिए, क्योंकि तो स्कूल जब दिखाएगा तो ऑटोमेटिकली बच्चों को भी फ़ायदा होगा एंड उनके पेरेंट्स भी इच्छुक बनेंगे पिक्चर देखने के। हाँ, अवेयरनेस बढ़ेगा। तो दिस इज़ माई सजेशन टू द डायरेक्टर विक्रम जी कि आप ये फिल्म की जो क्लिप है एक हाफ एन आवर के जैसे आज दिखाई गई थी, द सेम क्लिप आप स्कूल्स में दिखाइए और इफ़ यू वांट द रोटरी कैन हेल्प यू इन डूइंग दैट हमारे जरिए, सो दैट द फिल्म इज एनकरेज एंड डेफिनेटली इट्स अ समस्या विच हैज़ टू बी स्टॉप्ड। चिल्ड्रन सुसाइड रेट इज गोइंग अप एंड वी हैव टू स्टॉप। सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हमें टाइम नहीं मिलता। पेरेंट्स डबल वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं, उनकी ख्वाहिशें बढ़ गई हैं, तो पैसे ज़्यादा कमाने होते हैं तो ऑटोमेटिकली अब टाइम बच्चों को कम देते हैं। बच्चों को पैसे दे दिए, बस सोच लिया कि बेसिक समस्या यही है कि पैसे हम उनको पैसे से बच्चों को खरीद रहे हैं, उनको अपना प्यार और शिक्षण कम हो रहा है, घर का जो शिक्षण। ये एक ऐसी सच्चाई है जो कि अभी तक ज़्यादा उभर के नहीं आई। इस पिक्चर के ज़रिए जो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जो आज के वर्तमान युग में एक बच्चे जो आज फेस कर रहे हैं, ये उनके लिए ये उनकी ही कथा है, उन्हीं के बारे में बोला गया है। तो मैं तो एकदम देख के एकदम से इमोशनल हो गई बिकॉज समहाउ आई एम रिलेटिंग टू दिस मूवी। मेरे भी बचपन में मेरे साथ भी शायद ऐसा कुछ हुआ था, तो उस समय मैं अपने माता पिता को नहीं बता पाई थी, मगर आज ये अगर पिक्चर आई है तो शायद बच्चे अपने माँ बाप से इस बारे में कुछ बात कर सकेंगे। इस पिक्चर के ज़रिए शायद वो कुछ बोल पाएंगे और माँ बाप को भी शायद पता लगेगा कि उनके बच्चे किस दौर से किस भावनाओं से गुजर रहे हैं। तो एक बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आज की युग के लिए एक सही समय पर ये मूवी आई है। युवाओं के लिए है, टीनेजर्स के लिए है, बच्चों के लिए जो कि ये आजकल के बच्चे जो कि स्ट्रेस में रहते हैं, पढ़ाई का स्ट्रेस है, माँ बाप का स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस में गुजर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मूवी है। ये कोई एग्री नहीं करता मेरे के सामने कि मेरे साथ भी बचपन में ऐसा कुछ हुआ है।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मूवी कहना चाहेंगे एक अनदेखा सच आज यहाँ पे स्क्रीनिंग था, क्या विषय था, क्या यहीं पर ही है, चाहिए? यहीं पर। इतने लोग आए, क्या अप्रिशिएशन मिला, कितनी खुशी होती है जब एक किया हुआ काम लोग देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, कितनी खुशी हो रही है। और ये एक अनदेखा सच के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के बारे में और फिल्म के बारे में? जी, ये जो मूवी का टाइटल रखा है मैंने, एक अनदेखा सच, ये सही में एक समाज की अनदेखा सच है जो हर इंसान देख के भी अनदेखा करता है। चाहे हम मीडिया की बात करें कि मीडिया आज इतना एफर्ट लेके जिस एज में स्ट्रगल करके आज मूवी की हो या किसी चीज़ की स्क्रीनिंग करता है, लेकिन उनका कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है, उनका एक जो अचीवमेंट है वो कहाँ पे है। दूसरी ओर से बोलना चाहूँगा कि मैं एक अनदेखा सच ये भी है जो हर इंसान देख के अनदेखा करता है, जैसे कि रोटरी क्लब, लायंस क्लब, इन्होंने मुझे आज बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया है, BMC, मुंबई पुलिस, सब लोग का साथ मिल रहा है इसके लिए। लेकिन सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में आपके जो भी बातें होती है, जो भी घटित होती है, हमेशा ये कुदरत आपको रियलाइज़ करवाता है कि आपको दिखाता है कि ये गलत है, या तो जो कुछ भी ये हो रहा है आसपास जो आपकी घटनाएं हो रही है, ये शायद कहीं ना कहीं गलत हो रही है। तो हर इंसान इस चीज़ का रिएक्शन दे और इसका बात करे। बस मेरे मूवी का उद्देश्य यही था कि हर साल हमारे हिंदुस्तान में जो 6000 से भी ज़्यादा बच्चे सुसाइड करते हैं, इनके रीज़न्स, इनके सिम्टम्स और उसके सॉल्यूशंस क्या है, और विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स मैंने इसके अंदर दर्शाने की कोशिश की है। वही सवाल फिर मेरा आपसे रहेगा कि कौन है ये जिम्मेदार, सोसाइटी, पेरेंट्स? जी, जो जैसे कि मैंने इसके अंदर मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि कौन है इसका जिम्मेदार, कि सोसाइटी, पेरेंट्स या वो टीचर्स। लेकिन सोसाइटी है, पेरेंट्स है या टीचर्स है, इसी को देखने के लिए आपको थिएटर तक जाना होगा और 2 घंटे की इस मूवी को देखना होगा, ताकि आपको ये बात पता चले कि जिम्मेदार कौन है और किस तरह हम इस डेथ रेशियो पे कंट्रोल कर सकते हैं। सूत्रों से जानकारी मिली है कि 14 कुछ क्लिप है, टिप है इसमें जो आपने फिल्म में दिखाया है। एक आध टिप हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहेंगे, वो क्या है वो टर्निंग पॉइंट है? देखिए, हम लोग ने इसके अंदर BMC के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स और काउंसलर्स और ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का काफ़ी मदद से हम लोग ने ये 14 सॉल्यूशंस बनाया है। इसमें का एक से सबसे पावरफुल जो सॉल्यूशंस है वो मैं दर्शकों को इस मीडिया के ज़रिए बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों के माता पिता ना बने, उनके दोस्त बने। और उनके दोस्त बनने से आपको ये बेनिफिट होगा कि अगर आपके बच्चे कुछ प्रॉब्लम में है, कुछ तकलीफ में है, अगर उनकी कुछ इच्छाएं हैं, तो यंग एज में जाने के बाद में वो चीज़ें डिप्रेशन का शिकार ना हो या वो सुसाइडल थॉट तक ना जाए। इससे आप आपके बच्चों को बचा पाए, तो आपके बच्चों के दोस्त बनिए आप। प्रिया, आप क्या कहना चाहोगे? कितने से आपको अपने कहाँ देखा और क्या कुछ संदेश है आपने जो सीखा, वो क्या कुछ कहना चाहोगे बच्चों से जो ये फिल्म देखेंगे या लोग देखेंगे? मैं दर्शकों से यही बोलना चाहूँगी कि ये जो मूवी, इसमें जो सॉल्यूशन बताए गए हैं, जो डायरेक्टर विक्रांत सर ने दिए हैं, वो सॉल्यूशंस को अपनी निजी ज़िंदगी में वो अप्लाई करें और बहुत सारी चीज़ें वो सुधार करें अपनी। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ों में डरते हैं कि हम पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, वो हमें डांटेंगे या फिर वो हमें इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मानेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस वजह से बच्चों और पेरेंट्स के बीच की बॉन्डिंग नहीं होती, वो कम्युनिकेशन गैप होता है, जिस वजह से बच्चे और पेरेंट्स एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी एक रीज़न है बच्चों का डिप्रेशन में जाने का। कहना चाहेंगे क्या? सबसे ज़्यादा चीज़ जिसमें मैं एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ वो है कि कभी आगे जाके भी आज का जो यूथ है वो कल जाके कभी ना कभी पेरेंट्स बनने वाला ही है। तो अगर वो ये मूवी देखेंगे तो उनको पहले से ही कुछ चीज़ का एक अनुभव, एक आइडिया होगा कि हाँ, अगर ऐसा हुआ तो कैसे टैकल कर सकते हैं वो चीज़ को। और मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा फैक्ट पे कि अक्सर एक बच्चे का बाहर से जो व्यवहार होता है वो हमेशा सब व्यवहार दिखाए ना, तो ये मूवी वो ऐसा पर्टिकुलर व्यवहार को हम कैसे देख सके, उनके साइकोलॉजी को बेसिकली कैसे जान सके कि वो क्या सोच रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। आपका नाम जानना चाहेंगे और रोटरी क्लब कैसे सपोर्ट कर रही है रोटरी? सो हम रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे पर, हम रोटरी क्लब की यूथ विंग है। तो बेसिकली हमारा क्लब क्या है कि
इट्स बेसिकली फॉर द टीनेजर्स जो सोसाइटी की मदद करते हैं, और ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था जो विक्रांत सर ने इस पे काम किया था, तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हमें इसे तो सपोर्ट करना ही है। आपका नाम? धीरज देशपांडे। सानिया, कैसा लगा फिल्म और क्या ओपिनियन होगा आपका और क्या कुछ कहना चाहिए? फिल्म एक्चुअली बहुत ट्रूथफुल था, ऐसे ग्लैमरस फिल्म जैसा नहीं लग रहा था, वो कुछ मीनिंग था, सच्चाई थी उसमें, तो इसके लिए उसका इम्पोर्टेंस आई थिंक मेरे लिए ज़्यादा था। फील हो रहा था कि हम बचपन में हमारे साथ भी ऐसा हुआ। कुछ सीन्स के साथ मैं खुद पर्सनली कनेक्ट कर सकती थी, वैसे हो रहा था। ओपिनियन वाइज मैं कह सकती हूँ कि बच्चे का जो भी प्रॉब्लम होता है, छोटा या बड़ा, उनके लिए बड़ा होता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कोई पेरेंट को ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए कि उनके पास टाइम नहीं है सुनने के लिए, उनको वो इम्पोर्टेंट अभी लगता नहीं है, क्योंकि समय देना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, इट शुड प्रायोरिटी वैसे बच्चे को देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को भी देना चाहिए। ओके सर, सर आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम वैभव छत्री है, मैं रोटरा के हूँ बॉम्बे जो भी से हूँ। मूवी देखने के बाद बच्चों की भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल के इस युग में पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को वो समझ सके कि वो एक्चुअली क्या सोच रहे हैं, वो जहाँ जाना चाहते हैं, वो जो करना चाहते हैं, उनको वो करने दिया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दिस मूवी एक्चुअली गिव्स अस अ पॉजिटिव फीडबैक दैट हाउ वी शुड अंडरस्टैंड the children's mentality and then how we can proceed in their development. So this is the best movie I can say that will go live and then definitely it will rock. मेरा नाम अवनी देवकर है। मुझे इस मूवी बहुत अच्छी लगी। मुझे यही लगा कि सिर्फ पेरेंट्स को पढ़ाई नहीं ध्यान देना चाहिए। बेस्ट पार्ट, अगर फिल्म के पूरे फिल्म के बेस्ट पार्ट की बात करें तो क्या लगा? जो बॉन्डिंग जो बाद में दिखाई दी, जो बच्चे आए थे एक साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई और उनके साथ दे, सिर्फ पेरेंट्स ही उनका बात नहीं सुनते, तो कोई और भी सुन सकता है उनकी बात और समझ सकता है, तो एक बॉन्डिंग हो, सब फ्रेंड्स एक साथ बोल सकते हैं, तो इसलिए उनके बाद उनको समझ में आएगा कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स नहीं पर कोई और भी है। जी जी जी, सबसे पहले आपका नाम जानना मेरा चाहेंगे? नाम श्वेताली गाड़ेकर फिल्म है। देख के कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या ओपिनियन है आपका फिल्म को? मेरा ओपिनियन ये मतलब देख के मुझको ये पता चला कि हम लोग को हमेशा पेरेंट्स को उनके बच्चों को हमेशा उनके लेवल पे समझना चाहिए। उनका लेवल, पेरेंट्स का लेवल अलग होता है। पेरेंट्स को अपना खुद का छोड़ के उनके बच्चों के तरफ से सोचना चाहिए। अपना सोच उनके ऊपर न थोपे। हाँ वही, उनके तरफ से सोचना चाहिए कि उनको कैसा हो सकता है। जी जी जी। मेरा नाम वैष्णवी है एंड ये मूवी देख के ऐसा लगा कि हम लोग जब डे टू डे लाइफ से गुजरते हैं तो पेरेंट्स को हम लोग से कनेक्ट होना चाहिए और हमारी लाइक जो हम लोग थिंकिंग करते हैं उसको अंडरस्टैंड करके हमें भी थोड़ा टाइम देना चाहिए और हमारे बारे में जो हम लोग को मन में जो चल रहा है उसके बारे में पूछना चाहिए हर दिन हम लोग को। ये मूवी से पता चला। कितना टच किया? First of all, I am a music director for this movie. Thanks for विक्रांत मोरे जी जिन्होंने मुझे एक मौका दिया इस फिल्म में जुड़ने का। गाइस, जो भी पेरेंट्स हैं उन्हें यही कहना चाहूँगा, मोर देन मशीनरीज वी नीड ह्यूमैनिटी। अगर हमें अपने बच्चों को समझना है तो जैसा कि विक्रांत जी कहते रहे हैं, उन्हें अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। दोस्त जब बनाएंगे तो उनकी सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और अगर हम उन्हें ट्रीट करेंगे एक अलग लेवल पे, है ना, तो बहुत ही बुरा होगा। इस फिल्म को देखिए जाके कि हमने क्या क्या किया है। प्लीज़ चेंज योर माइंड। मेंटल लेवल पे आप बिल्कुल चेंज होना पड़ेगा आपको। जो भी पेरेंट्स हैं आपको समझना पड़ेगा उनके प्रॉब्लम्स को। हम भी एक बच्चे से बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, हमें भी फेस करता हूँ। मैं भी जब भी फिल्म देखकर रिलेट करता हूँ मैं कि हम फिल्म देख के। जी हेलो एवरीवन, मैं सपना खटीक। सबसे पहले विक्रांत सर जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने ऐसी बेस्ट सब्जेक्ट की मूवी बनाई है। हम तो हमेशा ऐसी मूवीज़ देखते हैं बट इसमें कुछ नया मुझे लगा कि हमें समाज के बारे में नहीं सोचते हुए अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जो हम नहीं कर पाए वो हम अपने बच्चों पे नहीं ला दें, हमें उनके साथ बच्चा बन के ही रहना चाहिए। उनकी हर एक खुशी सुख दुख एक फ्रेंड की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए। हमने उसे उन लोगों को सारी सुख सुविधा अगर हमने उपलब्ध करा दी है तो सिर्फ उतना ही हम लोगों का कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हमें उनका हर एक चीज़ उनको किस चीज़ में दिलचस्पी है, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वही हमारा आगे का फ्यूचर है, तो उनके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। का जो ओपिनियन मिला है किस प्रकार से थैंक्स कहना चाहिए, खास करके रोटरी और जी
मैंने जितना उम्मीद की थी कि चाहे मीडिया की बात करें, चाहे रोटरी क्लब, लायंस क्लब, मुंबई पुलिस, BMC, बॉम्बे साइकिट एसोसिएशन एंड इंडियन काउंसिल और ये सारे आर्टिस्ट जिन्होंने अपना कीमती वक्त देके यहाँ पे आए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोग इस फिल्म को इतना दिलो जान से चाह रहे कि थिएटर में जाए और इसको देखे, तो और उनके विशेष मेरे साथ हैं, तो मुझे पता है कि ये मुद्दा 135 करोड़ की आबादी तक 100% पहुँचेगा। कब ये रिलीज़ हो रही है, डेट बता दीजिए। इसकी रिलीज डेट अभी बहुत ही नज़दीक है, 4 दिन के बाद 17 नवंबर को पिक्चर रिलीज प्रदर्शित हो रही है गुजरात एंड ऑल महाराष्ट्र।